2025-এর ভারতে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা সব কৌশল, সব বিধি, জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী। এই জনসংখ্যা গোটা পৃথিবীতে উদাহরণ। দেশের 70 কোটি নারী শক্তি ঘর থেকে মহাকাশ পর্যন্ত বরাবরের ভাগিদার। বর্তমানের অর্ধেক জনসংখ্যা দুনিয়ায় লিঙ্গভেদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। যেমন আমাদের পূর্বপুরুষরা বলেছিলেন, একজন নারী শক্তি 7 জন্ম উদ্ধার করে। দেশের নারীরা আজ সেই প্রবাদকেই সত্য করে তুলেছে। मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं। আজ ভারতের নারী শক্তি নতুন উদ্যমে, নতুন দিশায়, নতুন অগ্রগতির সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত 11 বছরে মহিলারা শুধু অধিকারই পাননি, নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করেছেন। নারী গরিমা। ভারতে মহিলারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু 2014 সালের পর একটা বড় পরিবর্তন এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মহিলারা এখন ভারতের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। নারী শক্তি এখন একটি জাতীয় মিশন। এর লক্ষ্য হল প্রতিটি মহিলাকে সম্মান এবং সুরক্ষা প্রদান করা। এই প্রথমবার যখন মহিলাদের জন্য কেবল পরিকল্পনাই করা হয়নি, বরং তাদের মর্যাদাকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যেমন মিশন শক্তি, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, নমো ড্রোন দিদি, উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। নারী শক্তি বন্দন আইন নারীদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করেছে। শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। সেনাবাহিনী এবং বিমান চলাচলের মতো ক্ষেত্রে এখন নারীরা এগিয়ে। हमें उस जिले से ये फायदा मिला कि हम पहले जंगल जाते थे तो जंगल से आके खाना बनाना पड़ता था, धूप में आते थे, और फिर घर में आके चूल्हों में खाना बनाना पड़ता था। जब से हमें गैस मिला तो हम गैस में बनाते हैं खाना। मैं इंडिया एग्जामिनेशन के द्वारा इंडियन आर्मी में सर्व करूं, और जिस तरह से हमें यहाँ मेहनत करा रहे हैं, मेरे को पता है कि एक दिन हम जरूर सफल होंगे। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উন্নতি। স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য যখন উন্নত হবে, তখনই আমরা সঠিক পথে চিন্তা করব, জাতি গঠন ঘটবে। এই লক্ষ্য নিয়ে মিশন পোষণ শুরু হয়েছিল। অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পোষণ 2.0 অধীনে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 1,81,00,000 টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে। সরকার 2 লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এখনো পর্যন্ত 24,533টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। हम इस समय मटियाला के मनसाराम पार्क में हैं और एक आंगनबाड़ी केंद्र में हैं। आंगनबाड़ी केंद्र वो केंद्र होता है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही साथ बच्चों के बेहतर पोषण के बारे में भी चिंता की जाती है। उसके साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जो हमारी सेवाएं हैं वो गर्भावस्था से शुरू हो जाती हैं। जब प्रेग्नेंट लेडीज हमारे पास आती हैं तो रजिस्ट्रेशन कराती हैं, उसी दिन से उनका पहला स्टेप शुरू हो जाता है और उनका बच्चा 6 साल तक होता है, जब तक उन्हें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। गर्भावस्था के लिए हमारे पास कई स्कीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने चलाई है PMMVY स्कीम, तो वो हम उसको देते हैं। उसमें फर्स्ट बच्चे और सेकंड बच्चे दोनों को मिलती है। सेकंड बच्चे में ये कि लड़की होगी तो उन्हें मिलेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है, जिससे लड़की बेटी बचाओ का आंदोलन भी एक साथ साथ चल रहे हैं। প্রধানমন্ত্রী মহিলা সুরক্ষা যোজনার জন্য গর্ভবতী মহিলাদের জন্য চিকিৎসা থেকে নিয়ে ওদের টিকাকরণ, অ্যাম্বুলেন্স, ওদের সুবিধা, ডেলিভারি অবধি সব কিছু সুরক্ষা আমরা পাচ্ছি। আগে এইগুলো কিছু ছিল না, ওর জন্য অনেক প্রেগনেন্ট লেডিরা মরে যেত। এখন সেন্ট্রাল থেকে মোদিজি আমাদের জন্য ডেলিভারি হওয়ার পরে, বাচ্চা যখন জন্ম হওয়ার পরে ওদের টিকা থেকে নিয়ে সব কিছু ফ্রি অফ কস্টে হচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলির মধ্যে একটি গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। টিকাদান কর্মসূচি প্রতি বছর প্রায় 2,09,00,000 গর্ভবতী মহিলার কাছে পৌঁছয়।
জননী শিশু সুরক্ষা কর্মসূচি স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করেছে 16,60,00,000 শিশুকে। আত্মসম্মানের সাথে মহিলা ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন আত্মসম্মান দিয়ে শুরু হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে নিজস্ব পাকা ঘর, পরিষ্কার জ্বালানি, ব্যক্তিগত শৌচাগার এবং পরিষ্কার পানীয় জল। গত 11 বছরে কেন্দ্রের মোদী সরকার দেশের মহিলাদের জন্য এই সমস্ত জিনিসগুলি উপলব্ধ করেছে। हम अभी तारानगर सिकरिया में ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर मिला है निक्की देवी को। हम इसी घर के सामने खड़े हैं। हम निक्की देवी से कहानी जान। अच्छा ये बताइए कि ये घर आपको कब मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? ये मिला प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है। प्रधानमंत्री आवास मिला है योजना, तो घर बनाए हैं, पैसा मिला है तो बनाए हैं। पहले मिट्टी का घर था तो तोड़ कर मिला पैसा तो बनाए हैं। 2016 সালে চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের অধীনে 2,75,00,000 গ্রামীণ আবাসন সুবিধাভোগীর মধ্যে 73% মহিলা। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে 10,33,00,000 গ্যাস সংযোগ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল, যাতে তারা বিষাক্ত ধোঁয়া এড়াতে পারে। और जब से वो गैस मिला हमें तब से काफ़ी सुविधा हो गई। सुविधा ये हुई कि कहीं से भी आते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है। প্রধানমন্ত্রী গরিবদের জন্য অনেক উপকৃত করছে। উজ্জ্বলা প্রকল্পে পেয়েছি 200 টাকা সুবিধা পাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, যেন পরে আরো কিছু উপকার করুক আমাদের জন্য। স্বচ্ছ ভারত মিশন। স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনেও গত 11 বছরে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। 2014 সালের আগে মাত্র 39% বাড়িতে শৌচাগার ছিল, যা গ্রামীণ মহিলাদের জন্য এক কঠিন সময় ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের আত্মসম্মান রক্ষা করেছিলেন। 2014 সালে শুরু হওয়া স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় গ্রামীণ এলাকায় 12 কোটিরও বেশি শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। 93% মহিলা আর কোনো ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা আঘাতের ভয় পান না। 92% महिला राते निरापद बोध करें। स्वच्छ भारत मिशन केवल एक योजना नहीं बल्कि एक असल बदलाव है, जिससे जीवन को काफी ज्यादा सरलता मिली है, बहुत ज्यादा आसान यहाँ का ग्रामीणों का जीवन हो गया है और साथ ही स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी काफी ज्यादा मजबूती मिली है। पहले तो हमें खेतों में जाने थे तो परेशानी तो हुई थी। अब शौचालय बनने के बाद बहुत सुख पाते हैं हम। सारी बातों से सुविधा सही है। पहले बाहर जाते थे जो खूब गंदगी होती थी, प्रदूषण फैलता था गंदगी का, इसलिए शौचालय बना के इसमें जाते हैं। এখন গ্রামীণ মহিলাদের শৌচাগারের সমস্যা নেই, দূর থেকে জল আনারও সমস্যা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈপ্লবিক প্রকল্প যেমন স্বচ্ছ ভারত মিশন, জল জীবন মিশন তাদের জীবনে বড় পরিবর্তন এনেছে। জল জীবন মিশনের আওতায় এখনো পর্যন্ত 15,60,00,000 বাড়িতে জল সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। লক্ষ্য হলো 2028 সালের মধ্যে ভারতের প্রতিটি বাড়িতে কল এবং পরিষ্কার জল সরবরাহ। मैं राजेश निषाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के काया बांधा गांव पे इस वक्त मौजूद हैं और हम आए हैं नल जल योजना के लाभार्थियों से बातचीत करने और जानने कि आखिर ये नल जल योजना से उन्हें किस तरह से लाभ मिल रहा है। पहले यहाँ पानी की बहुत समस्या थी, क्योंकि 2-3 ही बोरिंग था यहाँ पर, तो घंटों लाइन लगाने के बाद हम लोगों को पानी की उपलब्धता होती थी। और एक बार जैसे जाते थे 1 घंटा में तो 1 गुंडी ही पानी ला पाते थे। दूसरा गुंडी पानी लाने के लिए फिर से हम लोगों को लाइन लगाना पड़ता था और नहाने वहाने के लिए तालाब में जाना पड़ता था, जिससे लेकिन अभी जैसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में जैसे नल से जल की व्यवस्था हो गई है, तो इससे हम लोग को घर में ही पीने लायक पानी उपलब्ध हो जाता है, नहाने के लिए भी हो जाता है। जैसे कि एक्स्ट्रा पानी बच जाता है, उससे हम लोग छोटा छोटा क्यारी बना के अपने घर में सब्जी का भी उत्पादन कर लेते हैं, घरेलू के लिए उपयोग के लिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी घर घर पानी वानी सब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी का काम बहुत अच्छा ही तरीका से कर रहे हैं पानी का। अब सरकार जब ले दी ना तब अच्छा अच्छे
और नीचे बोरिंग जावन ओटन बहुत गर्मी दिन में भी तकलीफ हो गई। अच्छा। तो हम ना वहाँ तक लावन बहुत दूर से, अब न लागे ना तब पानी का बहुत बड़ा भरता और टाइम भी चालू हो जाते और बहुत अच्छा सुविधा देते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ গত এক দশকে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার মেয়েদের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা এবং শিক্ষার জন্য অনেক দৃঢ় পদক্ষেপও নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো বেটি বাঁচাও বেটি পढ़ाओ। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आया, नारा क्या, जब से ये एक योजना लागू हुई है तो मुझे लगता है कि निस्संदेह बेटियों को शिक्षा के अवसर जो हैं बहुत अच्छे मिले हैं और एक जो जागरूकता समाज के अंदर फैली है वो भी बहुत अच्छी रही है इस योजना के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो लिंग अनुपात को हम कहीं ना कहीं ठीक कर पाए हैं वो भी एक इस योजना का उद्देश्य रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो हमने लड़कियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया है कि वो अपनी शिक्षा के माध्यम से खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, तो ये योजना बहुत अच्छी तरह से कारगर सिद्ध हुई है। এই অভিযান কেবল লিঙ্গ অনুপাত উন্নত করেনি, বরং স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হারও বাড়িয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবেদন অনুসারে জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত 918 থেকে বেড়ে 930 হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুসারে স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার 75.51% থেকে বেড়ে 78% হয়েছে। जो प्रधानमंत्री ने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे ना बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है और नज़र भी आता है। जो पढ़ाई हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाए थे अब वो हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, हमको बोलते हैं जो हम नहीं कर पाए वो तुम करो। जैसे प्राइवेट में वैसे ही सरकारी में अब वो बात नहीं है कि सरकारी वाले स्कूल में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ होता है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मेरी बेटी या फिर और भी सबकी बेटी हो वो आगे बढ़े और पढ़ें और अच्छा नाम रोशन करें। मम्मी पापा लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं कि आगे हम तो पढ़ नहीं पाए, आप तो जो थोड़ा पढ़ो, पढ़ लिख के कुछ बनो। 22 জানুয়ারি 2015 সালে চালু হওয়া সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বড় পদক্ষেপ। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা 4 কোটি 1 লক্ষেরও বেশি অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এটি মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য দুর্দান্ত আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैंने अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाया है। पोस्ट ऑफिस से ही अकाउंट खुलवा दिया जाता है और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इससे पेरेंट्स को बच्चे की आगे फ्यूचर एजुकेशन के एक्सपेंसेस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक फंड बिल्ड करने में पेरेंट्स की हेल्प करता है। নারী আত্মনির্ভরতা। আজ ভারতের মহিলারা কেবল গৃহিণী নন, উদ্যোক্তা, কৃষক, প্রকৌশলী এবং কর্মকর্তাও। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্পগুলি মহিলাদের স্বনির্ভর হতে উৎসাহিত করেছে। 10 কোটিরও বেশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ছোট বড় ব্যবসা শুরু করেছেন। কেউ আচার তৈরি শুরু করেছেন, কেউ সেলাইয়ের কাজ, কেউ ডিজিটাল পরিষেবার মাধ্যমে গ্রামে পরিবর্তন এনেছেন। 52 কোটি 5 লক্ষ মানুষ প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার আওতায় ঋণ নিয়েছেন, যার মধ্যে 68% মহিলা উদ্যোক্তা। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় নিবন্ধিত 10 কোটি 66 লক্ষেরও বেশি মহিলা। লাখপতি দিদির মতো উদ্যোগের মাধ্যমে 3 কোটিরও বেশি গ্রামীণ মহিলা আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়েছেন। स्वयं सहायता समूह नारी शक्ति के लिए एक अलग मिसाल बन रहे हैं और नारी को एक अलग पहचान दे रहे हैं। जहां नारी स्वावलंबी बन रही हैं तो वहीं वो लखपति भी बन रही हैं। स्टार्टिंग में हमारे समूह में 15,000 रुपये आए थे, तो वो पैसे मैंने अपने बिजनेस में लगाए और महिलाओं को जागरूक किया कि वो अपना कार्य स्टार्ट करें, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। शुरुआत में मैं अकेली थी, अकेले ही काम करती थी, लेकिन अब लगभग 10 से 15 महिलाएं मेरे साथ हैं जो मेरे साथ काम करती हैं
और मेरी महीने की जो आमदनी है वो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये है। स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम आई क्योंकि ग्राहक कम आने लगे थे, और जब मेरा काम अच्छा देखा तो ग्राहक भी अच्छे आने लगे। इससे मुझे अब अच्छी आमदनी होती है। मैं महीने में कम से कम 30-35 हज़ार रुपये अपना कर लेती हूँ, कमा लेती हूँ। और इससे मैंने काफ़ी महिलाओं को जोड़ भी रखा और खुद पार्लर भी सिखा दिया है। अब वो महिलाएं कुछ अपना गांव में अपना काम कर रही हैं और अपना अच्छा खासा रोजगार चला रही हैं। हमें काफ़ी लाभ मिला है इस योजना से। और उन्होंने समूह से, मेरे पास 21-20 समूह हैं और हर समूह में पैसा दिलवाया है और अपने समूह के पैसे से अपना कार्य कर रही हैं वो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शंभू का बहुत साथ है। अगर उससे तुम पैसे उठा कर किसी कारोबार में लगाओगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया योजना है और बहुत फायदा है उसका। नारी नेतृत्व পঞ্চায়েতে 33% সংরক্ষণ থেকে শুরু করে সরকারি চাকরিতে মেয়েদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ পর্যন্ত মহিলারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সেনাবাহিনীতে স্থায়ী কমিশন, এনডিএতে মেয়েদের প্রবেশ এবং এসটিইএম এর ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি, এগুলি নারী নেতৃত্বের দিকে দেশের নতুন পদক্ষেপ। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पापा और मेरे भैया दोनों ही अभी इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं और मैं उनको अपने पापा को देख के बड़ी हुई हूँ। उनसे इंस्पायर होकर मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ और जल्दी मुझे विश्वास है मेरा सपना पूरा होगा। मेरा ड्रीम भी वही है। मतलब पापा को देखकर मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलता है, वो वर्दी देखकर मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं भी एक बार यही एनडीए ज्वाइन करके अपने देश को रक्षा करूँगी और सेवा करूँगी। এখন কেবল পুরুষরা নয়, মহিলারাও পঞ্চায়েতের প্রধান হচ্ছেন। তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, গ্রামের উন্নয়ন করছেন। हम सोनीपत जिले के बड़ खालसा गांव में पहुंचे हैं, जहां पर हम महिला सरपंच से बातचीत करेंगे, उनकी तमाम चुनौतियों के बारे में, उनके जीवन में तमाम जो बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में, और आखिर कैसे वो एक महिला सरपंच बनी उस गांव की, उस राज्य में जहां पर आमतौर पर पुरुष प्रधान होते थे, पुरुषों का राज होता था। अब उनसे हम रियलिटी जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे महिलाओं के जीवन में एम्पावरमेंट आ रहा है और वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हो रही हैं। पहले महिलाएं कुछ नहीं करती थी, पर अब महिलाएं से, जैसे मैं एक सरपंच हूँ, अब सभी काम मुझसे पूछ के ही किया जाता है और मुझे बताया भी जाता है कि क्या काम हो रहा है गांव में। पहले महिलाएं पीछे रहती थी, अब उन्हें, जो हमारी बीजेपी सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है जिससे वे आगे आई हैं। और उन्हें पहले जो दबदबाव महसूस होता था वो नहीं है, वो खुले विचारों की हो चुकी हैं, वे आगे आई हैं और वो हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे ही हैं। नारी सुरक्षा एवं प्रजुक्तिगत क्षमतायन। আজ নারী শক্তি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান, জনধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধা স্থানান্তর এবং অনলাইন পরিষেবাগুলি মহিলাদের তাদের নিজস্ব অর্থ পরিচালনা করতে সহায়তা করছে। মহিলা হেল্পলাইন, ফাস্ট ট্র্যাক আদালত এবং কঠোর আইনের মাধ্যমেও মহিলাদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। देश में डिजिटल इंडिया की क्रांति चल रही है और डिजिटल इंडिया आ जाने से महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। इस समय हम पहुंचे हैं लखनऊ के इंदिरा नगर में। ये वहां पर उन महिलाओं से हमने बात की जिन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया आ जाने से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। डिजिटलाइज इंडिया से हमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिली है। इंडिया में लाइफ में भी हमारे बहुत चेंज आया है। इससे हमें किस तरह से मोबाइल का यूज़ करना है, हमें ऐप्स को कैसे यूज़ करना है और किस तरह से हमारे समय की बचत हो रही है और हमारा काम भी समय पे हो जा रहा है, ये सब चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से मिल जा रही हैं। ये बहुत हमारे लिए बेहतर सुविधाएं हैं जो हमें डिजिटल इंडिया से मिली है। बहुत चेंजेस आए क्योंकि अब हम लोग को फ़ोन पे ही ऑनलाइन बच्चों के वर्क्स आ जाते हैं, होमवर्क्स आ जाते हैं, बच्चों को कैसे वर्क कराना, ये सारे मेथड फ़ोन पे आ जाते हैं, तो बहुत इजी हो गया। पहले तो हमें बिजली बिल जमा करना होता था तो लाइन में लगना पड़ता था, स्कूल का फ़ीस वगैरह। अब तो हम घर बैठे ग्रॉसरी भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन और काफ़ी इजी हमारी लाइफ हो गई है। एक तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला था, वो बहुत से फ़र्क आ गया है। काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है, चाहे वो अकाउंट से लेके फाइल्स जो पहले इतनी मोटी मोटी होती थी, अब वो सब हम लोग सारा इसमें काम करते हैं। नारी शक्ति বিকশিত ভারতের শক্তি। ভারতীয় মহিলারা এখন থামবেন না। তারা কেবল নিজের জন্য নয়, সমগ্র সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠছেন। উন্নত ভারতের স্বপ্ন তখনই পূরণ হবে যখন প্রতিটি মহিলা ক্ষমতায়িত, শিক্ষিত এবং স্বনির্ভর হবেন। সেটি সরকারের প্রকল্প হোক, সমাজের সমর্থন হোক অথবা মহিলাদের নিজস্ব ইচ্ছা শক্তি হোক। এই তিনটি একসাথে দেশকে একটি নতুন দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। কারণ
মহিলারা যখন এগিয়ে যান তখন জাতি এগিয়ে যায়। এই হলো নারীদের জন্য নতুন গতিশক্তি। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।